Jai Hind everybody. Welcome to biology class 12th. So today we'll be starting a new chapter 4, that is reproductive health. So in chapter 3, that was human reproduction, we in that chapter we have studied everything related to reproduction. We have studied about reproductive system, its function, various processes. So now today we'll be dealing with a very important topic, that is reproductive health. That is also very important to keep your reproductive organs healthy. Now the first thing is that what is the meaning of reproductive health? So the term it simply means the healthy reproductive organs with normal functioning. ठीक है, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड से आप क्या समझ रहे हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना चाहिए और उनके जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी नॉर्मल होना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग about reproductive health problems and strategies. Then we'll be also taking up your population explosion, family planning and birth control, then medical termination of pregnancy, sexually transmitted disease and infertility. But today we will be dealing with a family planning. We will study about the family planning, what is the need of the family planning, and what all the strategies the government made to create awareness among the people. Okay, now according to the WHO, if you say that is your World Health Organization, उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है? इट मीन्स अ टोटल वेलबींग और टू ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ योर फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल and social. Means if a person is sounding good in all these respects, means physically भी वो fit है, इमोशनली वो बैलेंस्ड है, बिहेवियरली उसका बिहेवियर भी बहुत पीसफुल है, काम है, और वो सोशल भी है, देन दिस मीन्स अ पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय WHO. ये WHO ने डेफिनेशन दी थी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली प्लानिंग. नाउ फैमिली प्लानिंग की अगर हम बात करें, नाउ इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल. ओके, सो इंडिया जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये इनिशिएट किया. ओके, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए, प्लान्स बनाए एट नेशनल लेवल टू प्रमोट this reproductive health, and these programs are only known as family planning. ठीक है, so and the family planning was initiated in 1951. 1951 में ये स्टार्ट हुई थी और जब से आज तक ये पीरियोडिकली असिस्ट होती रहती है. ओके, टाइम टू टाइम पीरियोडिकली असिस्ट इसको करते रहते हैं. ओके, now we come to the population explosion. Now what is population explosion? Population explosion is defined as the total number of individual of a species present in a particular area at a given time. Okay, explosion as the name suggests, blast, population का blast, population का alarming rate से बढ़ना. So इसका मतलब होता है टोटल नंबर कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम. इससे हम निकालते हैं पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है. एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को हमने नाम दिया है, दैट इज़ नोन एज डेमोग्राफी. ओके, now come to the why there is a need of family planning. फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, या गवर्नमेंट जो है क्यों इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है और इतनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, व्हाट इज़ द नीड, किस लिए ये सब कुछ किया गया है. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग. फर्स्ट है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ. तो पहला है कि हमें फैमिली प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो भी अनवांटेड बर्थ है, जो हम नहीं चाहते हैं बर्थ बच्चों के, उनको क्या करना, अवॉइड करना. इसलिए फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी. ओके, प्रेगनेंसी के बीच में डिफरेंस होना, क्योंकि बहुत जल्दी प्रेगनेंसी होना भी इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ मदर.
मदर की हेल्थ को बहुत अफेक्ट पड़ता है इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ without any gap. Okay, so to regulate the interval between two pregnancies. Okay, for this reason also family planning is very important. Then to determine the number of children in family. Okay, suppose if a person can brought up only 2 children well, then also he has to plan that. ठीक है, अगर हम 2 बच्चों का ही पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको प्लानिंग करनी होगी कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं चाहिए. सो फॉर दिस ऑल्सो यू नीड अ फैमिली प्लानिंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ टू हैव अ हेल्दी फैमिली. ओके, अगर हमारी प्लानिंग होगी, फैमिली प्लानिंग होगी, तो हमारी फैमिली भी हेल्दी होगी. ओके, सब हमारे पास, हमारी फैमिली रिसोर्सफुल होगी. ओके, हम सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं सबको. ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव अ हेल्दी फैमिली. Okay, so India is the first country in the world to initiate family planning program in 1951. That I have already discussed. Okay, then in 1977 it changed into family welfare program to improve the quality of life of people. Okay, 1977 में ये change हो गया family welfare program से. Okay, किस लिए? In order to improve the quality of life. यहाँ पे जो लाइफ है, लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना था. ओके, now this reproduction and your child health care programs. Okay, these are also implemented. So that is your RCH. Okay, so that is also implemented for the welfare of the children, to create the awareness among the people about various reproduction related aspects, and also providing facilities and support for building up a to have a healthy, reproductively healthy society. Okay, तो सारे सब कुछ मीन्स जो है इक्विपमेंट्स भी प्रॉपर होने चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए. ओके, जस्ट टू हैव अ हेल्दी फैमिली. सो इसके लिए जो है जो प्रोग्राम है, दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड. Okay, now apart from this, government also take effective measures in creating the awareness. Government भी बहुत सारे measures लेती है just to teach them about the importance of this having reproductively healthy body. Then what government do? Government ने बहुत सारी strategies अपनाई हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज़ करती है. देन प्रिंट मीडिया, बैनर्स आपको जगह जगह दिखेंगे. ओके, फैमिली प्लानिंग के दिखेंगे. देन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ यू कैन सी. ओके, सो ये एक सब चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट जो है जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस. और सबसे खास बात है कि गवर्नमेंट ने अब सेक्स एजुकेशन को भी कंपलसरी कर दिया है स्कूल में, जस्ट सो दैट द स्टूडेंट्स, सो दैट द चिल्ड्रन दे हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. वो किसी मिथ पे, किसी र्यूमर पे बिलीव ना करें, उनको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए रिप्रोडक्शन के बारे में, जो भी चेंजेस होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए. ओके, सो इन सब चीज़ों की एजुकेशन भी नाउ इट इज़ इम्पार्टेड इन द स्कूल थ्रू सेक्स एजुकेशन. ओके, दैट हैज़ ऑल्सो मेड कंपल्सरी. देन ऑल्सो अबाउट द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स इट कम्स अंडर द your reproductive different programs that is initiated by the government just to create awareness among the people. Okay, now for the different slogans are also time to time release from the government. बहुत सारे slogans भी release होते हैं, like हम दो हमारे दो, like इस टाइप के slogans हैं. in 1970 slogan जो release हुआ था, जो बहुत famous हुआ था, 2 या 3 बस. ओके, 2 या 3 बस. एंड इन 1980 देयर वाज अ स्लोगन, सन और डॉटर टू विल डू, सेकेंड आफ्टर 3 years.
ओके, सन और डॉटर टू विल डू सेकेंड आफ्टर 3 years. सो ये सब जो स्लोगन्स हैं ये भी जो है थ्रू प्रिंट मीडिया के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बैनर्स लगते हैं जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टीच द पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ keeping your body reproductively healthy. Okay, that is also the demand of today's time, कि if you will not be physically fit, physically sound, then the survival is very much difficult. Okay, so this is all about the family planning. So hope you all have understood. So thank you everybody.